Good morning, students. We have completed chapter number 16, that is light, and today we will start a theory chapter, that is water. Chapter number 17, water and essential source. What is this? Today we will to discuss about the water present in the different areas or different regions of the country or the world. We all know water is essential for the existence of not only the human beings but also for the plants and animals. What is saying? कि we know that water is essential for the survival of animals, plants और existence of that. उनके existence के लिए water क्या है? Essential है. Plants needs water to grow, to make their food, to manufacture their food and in presence of sunlight. Can you name this process? What is the process is this? The process by which the plant can form their food, prepare their food is known as photosynthesis. It is photosynthesis. What is the meaning of this photosynthesis? The green plants, in the green plants, the stomata found in the leaves or green parts collects the CO2 from the environment and also water from the roots in presence of sunlight and chlorophyll. What is chlorophyll? Chlorophyll is the green color pigment that always helps in the photosynthesis. जो कहां पर होता है? ग्रीन पार्ट्स में होता है प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में ये होता है. यूजिंग दीज इट कैन फॉर्म द फूड. क्या बनाता है ये? प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एनवायरमेंट, H2O from the root hairs that is absorbed, and in presence of sunlight and chlorophyll it can form the glucose and oxygen. क्या बनाता है वो? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है, प्लांट्स बनाते हैं. And in this is the process by which plants prepare their own food. This process is known as photosynthesis. क्या बोलते हैं इसको? Photosynthesis बोलते हैं इसको. Okay, then what we have to understand कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल रहा है, where it is formed, ये कहाँ से बन रहा है? From ये कहाँ से आ रहा है? This oxygen is coming through the chemical or photochemical dissociation of this water molecule. ये कहाँ से आ रहा है? It is from the water molecule. इस water molecule का क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन होता है. It is known as photochemical reaction. Photochemical dissociation. Photochemical dissociation. It is reaction is photochemical. Why? Because photo means light. Photo means light. The sunlight is always falls in the packets in the form of packets. These packets are known as photons. These packets are known as photons, and these photons are helping in the photosynthesis. Okay, photochemical dissociation is this reaction. ठीक है, यहां पर क्या होगा? CO2 का क्या होता है? रिडक्शन. ऑलवेज CO2 का क्या होता है? रिडक्शन होता है. आई बात समझ में? तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. देन वाटर कैरीज द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल अप टू द प्लांट पार्ट. यही तो मैंने आपको बताया कि H2O इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द रूट्स बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल. सॉइल के अंदर से रूट्स क्या करती है? वाटर को एब्सॉर्ब करती है. एंड दीज वाटर अलोंग विद द न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स गोज up to the plant parts. If you forget to water the plant in your garden for few days, you will see that they start shrinking and drying up due to lack of water. क्या बोला इसने? When we forget the water to give the water to the plants in garden, they will dry or shrink due to the lack of water. This is called the wilting. इसको क्या बोलते हैं? Wilting. The process by which process when we forget to water the plants in our garden, process आई है wilting. क्या है wilting? What do you mean by the wilting? Wilting is the process when forget to water
garden, then they get shrinked, drying up due to the lack of water. Due to the lack of water, this is the process, this is called wilting. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Wilting. The question is what is wilting? Question यहाँ पर क्या है? Wilting. अब बात ही आ रही है कि what is the process by which the plants make their food? Photosynthesis. One question. Second is what is wilting? Next is without water there would be no life possible on the earth. It is a responsibility of all of us to save the water. सही बात है, we have to save the water. Here are some newspaper clippings. Can you find the common message hidden in all of them? The Kashmir Valley needs 110 million gallons of water a day but gets only 40 million now. क्या बोला उसने? कश्मीर वैली के अंदर जो 110 मिलियन गैलन वाटर की कंजम्पशन डेली होना चाहिए, बट वहां पर क्या हो रहा है? ओनली एंड ओनली 40 मिलियन भी उनको मिल रहा है. शिमला विच वॉज फॉन्डली कॉल्ड द क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ियों की क्वींस बोलते थे उनको, बाय द ब्रिटिश, हैज बीन एक्सपीरियंसिंग एन एक्यूट ड्रिंक वाटर शॉर्टेज डिस्पाइट हैवी रेन्स. वहां पर बहुत ज्यादा हैवी रेन्स हो रही है लेकिन फिर भी वहां पर क्या है? वाटर शॉर्टेज है. गुजरात विलेजेस इंड्योर एक्यूट वाटर शॉर्टेज, वहां पर भी क्या हो रहा है? दे आर सफरिंग विद द शॉर्टेज ऑफ वाटर. सांबर सॉल्ट लेक ऑफ राजस्थान में सून सीज टू एग्जिस्ट, कुछ दिनों में क्या हो जाएगी? बंद, मतलब एक तरह से सूख जाएगी. वाटर रियॉट्स हैव ब्रोकन आउट इन मध्य प्रदेश दिस ईयर. रियॉट्स का मतलब होता है कि जो सीमा थी वो टूट चुकी है वहां से. द वाटर टेबल हैज गॉन डाउन इन सेवरल कंट्रीज. वाटर टेबल, वाटर का जो लेवल था अंडरग्राउंड, दैट इज स्लो डाउन. येलो रिवर हुज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फ्लड्स मेड इट नोन एज चाइना सोरो. येलो रिवर जो थी उसको हम लोग बोलते थे चाइना का शोक. आज इट्स नाउ इन सच अ स्टेट, इस स्टेट में है दैट मोस्ट ऑफ द ईयर इट डज नॉट इवन रीच द सी, वो समुद्र तक भी नहीं पहुंच पाती है. You too can collect some pictures and clippings from the newspapers and magazines related to the water shortage. मतलब पेपर्स और क्लिपिंग्स के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनके बारे में लिखा गया है. You have learned in your previous classes that the earth is called the blue planet. अर्थ को blue planet बोल रहे हैं because the earth is 75% surrounds by the water. इसका जो 1/3 पार्ट है that is covered by the water. Do you remember why water covers 70% of the earth's surface which makes the earth look blue from the space? स्पेस से अगर हम लोग देखते हैं तो इससे 70% वाटर है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट. Then you might think that with all these water around there ought to be plenty of everyone. क्या ये वाटर जो है 70%, क्या ये हमारे लिए, सबके लिए क्या है? प्लेंटी मतलब सफिशिएंट है. But in spite of being of the most abundant natural sources, most of the water is not available for the human use. क्या बोला? कि ये सारा नेचुरल सोर्स है बट ह्यूमन यूज के लिए क्या है? कि अवेलेबल नहीं है. Haven't you heard the famous line water water everywhere, not a drop to drink from the poem The Rime of Ancient Mariner? क्या बोला उसने? क्या आपने सुना है? एक फेमस लाइन है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप फॉर ड्रिंक. एक सिंगल बूंद भी को हम लोग पीने लायक नहीं है. नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ वाटर इन नेचर. वाटर कौन कौन से फॉर्म्स में प्रेजेंट है? देखो आप लोग. वाटर इज ओनली सब्सटेंस दैट इन नेचर विच कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. वाटर 3 स्टेट्स में आ सकता है. आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स एंड वाटर वेपर से 3 स्टेट्स में यहां पर प्रेजेंट हो सकता है, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ऑन द वाटर वी ड्रिंक एवरी डे इट इज लिक्विड फॉर्म. कैसा है वो? लिक्विड फॉर्म है. ऑन द अर्थ इट इज सीन एज सरफेस वाटर प्रेजेंट इन द रिवर, ओशन, लेक्स एटसेट्रा.
द वाटर इज प्रेजेंट अंडरग्राउंड इज नोन एज ग्राउंड वाटर। वो क्या है? ग्राउंड वाटर है। ओशियन कंस्टिट्यूट अबाउट 90% ऑफ द लिक्विड वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ। अर्थ के जो 1/3 पार्ट पे जो वाटर है उसका 90% को 97% का होता है किसमें? ओशियंस में। बट द वाटर इज सॉल्टी एंड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। जो ओशियन वाटर है वो क्या है? आपका सॉल्टी है, उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बिकॉज वहां पर क्या है? सॉल्ट बहुत ज्यादा, नमक है, नमकीन पानी है, इसलिए इट इज नॉट फिट फॉर द ड्रिंकिंग। सो वी आर लेफ्ट विद जस्ट 10% ऑफ फ्रेश वाटर रैली अपॉन। इसको छोड़ देते हैं हम लोग फ्रेश वाटर के लिए, कुछ अमाउंट में ही हमारे पास क्या है? फ्रेश वाटर है फॉर ड्रिंकिंग। ऑन द अर्थ वाटर इज ऑल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आइस ऑन द माउंटेन्स, पीक्स, ग्लेशियर्स, आइस बॉक्स एंड इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक पोलर रीजन्स। ऐसे एरियाज के अंदर क्या है? जो वाटर है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस। स्लो मूविंग मास ऑफ आइस इज कॉल्ड द ग्लेशियर। स्लो मूविंग मास का मतलब क्या होता है? ग्लेशियर, बहुत सारे ग्लेशियर जो पहाड़ों के ऊपर लगे हुए हैं वो धीरे धीरे क्या होता है? नीचे की तरफ खिसकते रहते हैं। द रिवर गंगा अराइजेस फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन निकलती है? गंगा निकलती है। चंक्स ऑफ द आइस ब्रेक्स ऑफ इनटू द ओशन टू फॉर्म आइसबर्ग्स। चंक्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े। आइसबर्ग जैसे बर्फ की सिल्ली होती है वैसे ही क्या होता है? आइस के क्या होते हैं? बड़े बड़े छोटे छोटे क्या होते हैं? पहाड़ नुमा जो टुकड़े होते हैं वो क्या होता है? पानी के अंदर तैरते रहते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं आइसबर्ग्स। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द शिंकिंग ऑफ द मैजेस्टिक शिप टाइटैनिक। उसके डूबने की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी टाइटैनिक की। ड्यू टू वन सच आइसबर्ग, ऐसे ही आइसबर्ग के कारण वो डूबा था। ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स आर रेफर्ड टू एज द स्टोर हाउस ऑफ द फ्रेश वाटर। ग्लेशियर्स और आइस कैप्स ऐसे जो है इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टोर हाउस होते हैं। ये क्या? फ्रेश वाटर के। वाटर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन गैसेस फॉर्म एज वाटर वेपर्स। द वाटर वेपर्स rises up and combines to form the clouds. Clouds के अंदर क्या होती है? water vapors condensed हो जाती है। Have you ever thought how much water is actually available to us? कितना वाटर हमारे पास है? यहाँ पर दिया हुआ है अर्थ का जो टोटल वाटर है उसका 97% क्या है? आपका ओशियन वाटर है, 3% क्या है? फ्रेश वाटर है। और आगे जाने के बाद देखो क्या है? फ्रेश वाटर जो है आपके पास वो 3%, उसका भी 31% अप्रोक्स ग्राउंड वाटर है और 68.7% अप्रोक्स है वो आइस कैप्स और ग्लेशियर के फॉर्म में है। फिर उसमें क्या है? 0.9% जो है वो सरफेस वाटर है, वो भी कितना है? 0.3%। और अदर कितना है? 0.9%। और लेक्स के अंदर कितना है उसका? 87%, जिसमें स्वैम्प मतलब गंदा पानी है और रिवर्स वाला है 2%, ठीक है। इट इज राइटली सेड दैट द वाटर इज टू मच येट टू लिटिल। मतलब क्या बोला? अगर सही मायने में बोला जाए तो द वाटर इज टू मच येट टू लिटिल। अभी तक वाटर क्या है? बहुत ही कम है। वी ऑल डिपेंड ऑन द सरफेस वाटर फॉर ऑल आवर नीड्स लाइक ड्रिंकिंग, वॉशिंग, गार्डनिंग, इरिगेशन एंड रिक्रिएशन। इन सब के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की जरूरत पड़ती है। द combined mass of water found on water and over the surface of earth is called hydrosphere। जितना वाटर है, कंबाइंड मास है वाटर का, फाइंड ऑन द अंडर, ऑन और ऑन द सरफेस, अर्थ के अंदर और बाहर जितना पानी है दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। इट इंक्लूड्स द ओशन, सीज, लेक्स, पोन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स ऑल्सो। इन सब में ये होता है, ठीक है। आगे देखिए लोग, सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है? सोर्सेज ऑफ वाटर क्या बोला उसने? सोर्सेज ऑफ वाटर में क्या क्या है देखो। It is learned that the very small amount of water available for the domestic purposes, the main source of fresh water are surface water and ground water। क्या बोला? कि जो फ्रेश वाटर है, सोर्सेज है, वो दो टाइप के हैं, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर लेवल। सरफेस वाटर दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस। द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर इज द रेन वाटर। पानी कहां से आता है? वहां पर रेनिंग से आता है। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। दो sometimes the first rain of season is acidic because whenever the oxide of sulfur and nitrogen meets to the water vapors or combined with the water vapors and clouds, they form the sulfuric acid and nitric acids, like the acids which are accommodates the impurities present in the environment। उससे क्या होता है? impurities आ जाती है environment में। the subsequent showers are of pure water। उसके बाद में जो आने वाली क्या है, जो रेनिंग हो रही है, दैट इज फ्रेश वाटर।
Other sources of fresh water present on the surface are rivers, ponds, streams and lakes in which water comes from the river and melted. Glaciers, rivers and lakes are usual sources of water for the large cities. Rivers और lakes से क्या होता है, बड़े बड़े cities को क्या होती है, water की supply होती है. Ground water comes from the natural seeping. Ground water कहाँ से आएगा भाई? Seeping का meaning होता है percolation. पानी क्या करता है, ऊपर से जो पानी भरा हुआ है वो धीरे 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 नीचे क्या होता है, रिश्ता रहता है, नीचे की तरफ एब्जॉर्ब होता रहता है. इट्स कॉल्ड द परकोलेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस लाइक रेन, स्नो, स्लीट एंड हेल्स एंड अदर सरफेस वाटर्स डाउन थ्रू द अर्थ. द सोइल गेट्स कलेक्टेड बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड बेडरॉक्स. वाटर जो होता है वो कलेक्टेड कहाँ हो जाता है, जो लेयर्स ऑफ हार्ड चट्टानों की जो परतें जो ग्राउंड में है उनके अंदर से ये रिश्ता हुआ पानी जाएगा नीचे, जिसको बोलते हैं एक्विफर. द अपर लेवल ऑफ द वाटर जोन इज कॉल्ड द वाटर टेबल. सबसे ऊपर वाला जो लेवल है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर टेबल. द प्रोसेस ऑफ सीपिंग वाटर इज डाउनवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड द इनफिल्ट्रेशन. पानी धीरे 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 नीचे रिश्ता है, परकोलेशन की जो होती है उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन. दिस वाटर हेल्प्स टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर जो नीचे का लेवल है उसको बढ़ाने में यह हेल्प करता है. वाटर फ्रॉम द एक्विफर कैन पम्प्ड आउट बाय द हैंड पंप्स एंड ट्यूबवेल्स. जो पानी कहां पर है, एक्विफर मतलब ऊपर वाले जोन में है, अपर जोन में है, उसको बाय द हैंड पंप्स और ट्यूबवेल क्या करते हैं, उनको बाहर हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है. उसके बाद में हमारे पास क्या है, यूजेस है किसके, वाटर के. फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर लाइफ प्रोसेसेस, पानी पीने के लिए और अदर प्रोसेस के लिए. इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी यूज होता है, इंडस्ट्रीज में और रिक्रिएशन पर्पज में और डोमेस्टिक पर्पज में भी वाटर का यूज होता है. तो ये आपका पार्ट फर्स्ट था किसका, चैप्टर 17 का. वी विल अगेन आफ्टर रीड दिस चैप्टर. ये आप लोगों ने देख लिया है. अब यहां तक आप लोगों को ये क्या करना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पुट आउट करने हैं और आपको ये क्वेश्चंस अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं. ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.